Blessings, Ragini ji blessings. Rupa ji blessings, Rinku ji blessings, Varsha ji blessings, Sarojini ji blessings, and Suchindra Pal madam is a blessing. Okay. Sanskriti Chatterjee blessings. So now, just please open your video 5 minutes, then you can close because my knowledge session will be start, and I will be very happy. Today we are going to cover how I invented one good father and good son. एक त्यागी सेवा भावी पिता, और मुझे फुल कवर कर दिया आपने जय जी, स्पीकर मोड पर डाल दिया मुझको आपने. आई वॉन्ट दैट होल नोबडी विल सी मी मैन. हाँ, सो जय जी, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड. जय लक्ष्मी जी, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड. यू लेट अस कंफर्म मी कि दैट केवल मेरा ही फोटो आना चाहिए, बाकी नहीं किसी का. ओके. So today we are going to discuss about भीष्म पितामह. भीष्म पितामह कौन, हम क्यों करें. महाभारत के सभी पात्र ने जो भी उस वक्त अपनी एक्शन ली, क्या इंटेंशन था, उनकी कार्य जो किया, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम टुडे. आज में वह अलग अलग रोल कितने प्रासंगिक है, वो भरी धृतराष्ट्र का हो, संजय जी का हो, दुर्योधन जी का, शकुनी, गांधारी, कर्ण, और आज हम चर्चा करने बैठे शकुनी. इवन आज हम करना चाह रहे हैं भीष्म पितामह की. सामान्यतः हमें से अधिकांश लोग जानते हैं. मैं जानना चाहूंगा एनीबडी हु नो अबाउट द भीष्म पितामह, कुछ भी ब्रीफ में बोलना चाहेगा. एनीबडी वांट टू से अबाउट भीष्म पितामह. भीष्म पितामह कौन था, भीष्म पितामह क्या कारण थे भीष्म पितामह. यस जया जी फर्स्ट. I can mention only towards the end, Guruji. So he could choose the day कब उनका देहांत होना था, वो चूज कर सकते थे. और जब वो डेथ बेड पे थे, लाइक यू नो, उनके ऊपर पूरे बॉडी पे एरोस छुपी हुई थी फ्रॉम द वॉर, उन्होंने विष्णु सहस्त्रनामम, राइट, विच इज रिसाइटेड, उसमें 1000 नेम्स ऑफ विष्णु दिए गए. सो आई नो दैट पार्ट. एनीबडी एडिट, कोई ऐड करना चाहेगा इसमें. एनीबडी वांट इट अबाउट द भीष्म पितामह. जया जी एक मिनट, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को. जया जी अनम्यूट कर लें. He was the son of Shantanu, and Yes. he sacrificed his life. Almost he took a vow not to marry, so that he doesn't produce any children for the throne. There won't be any this thing, so that his father can marry whom he liked, and his step brothers would be the rulers in the future. That's why कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा. Thank you Jaya ji. Thank you very much. So it is the main cause the Bhishma Pitamaha has been remembered always because he took the oath, commitment for sake of father happiness. So आज के दौर में अब मैं भीष्म पितामह के और पीछे जाता हूं. I am going to talk about the Pradeep, who is the father of Shantanu. Right? Just recall. है ना? Father of Shantanu, his name is Pradeep. He was sitting in the near Ganga. And Ganga, like him, as per the Shastra, and he come on the right thigh. And he is too much impressed with the Pradeep's king personality. He said, I want to marry with you. So, Bole, you got it, the right thigh. Right thigh represent to son. He is very concerned about his son marriage. So he requests to Ganga, you just marry with my son. So that time Shantanu got married with the Ganga, with the commitment of that
Ganga got married and said, "You not supposed to interrupt me. आप मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे, तब मैं आपसे विवाह को तैयार हूं." मतलब एक पिता का त्याग, गंगा के बाद उन्होंने बच्चे के लिए त्याग किया कि मेरा बच्चा शादी नहीं हो रहा है, इससे आप शादी कर लो। और दूसरी चीज, ये कमिटमेंट भी शांतनु ने उनको दे दिया। 7 बच्चे हुए, द 7 चिल्ड्रन फ्रॉम गंगा एंड शांतनु. All 7 children has been taken by Ganga with their own flow. With the 8th child come out, that time Shantanu hold the Ganga's hand. No. But you cannot take all the sons. It's one you just leave. The same time, Ganga disconnected with him because you break your sankalpa. I told you before marriage, you are not supposed to interrupt in my life. And you interrupted, so I am going. So Shantanu is take care of the Devvrat, who has become Bhishma. Now, chapter, the devotion, dedication toward the son. Now is time for son to devotion for father. So after some time, it's a story, but what we can learn that I will let you know onward. आखिर में क्या होता है कि वो जो शांतनु जी है उनको भी एक सत्यवती महिला पसंद बहुत आ जाती है. And the Bhishma Pitama father is become sad now. When he talk to all the bola, that's why he become sad. He like one lady. So Bhishma Pitama went there to bring a relation. They said, my God, bole, your son, you are become a king of that total Rajya. Then your son, why my daughter? That's why this Bhishma Pitama took the maid. I won't take a charge of king. मैं कभी जिंदगी में चार्ज नहीं लूंगा एक राजा का, और ना ही मैं कभी शादी करूंगा कि मेरे बच्चे इसके उत्तरदायी बने. जो भी होंगे वो सत्यवती और शांतनु से जो बच्चा आएगा वह राजा बनेगा. तो वह ओथ अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प थी, एक संकल्प शक्ति थी. वह उसके माध्यम से उन्होंने राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया. अभी आपको कथा लग रही है, लेकिन मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकल बाद में लेके आता हूं. एंड ही इज आफ्टर टेकिंग द ओथ, उससे वो बड़े ब्लेस हुए. एक मिनट, लेट मी कंटिन्यू. व्हेन आई से आस्क द क्वेश्चन, दैट टाइम यू आस्क. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तेरे को मैं इच्छा मृत्यु का आदर देता हूं, तो एक वर भी प्राप्त हुआ उनको केवल उनकी प्रतिज्ञा के पीछे. प्रतिज्ञा के पीछे उनको वर मिला कि तू जब चाहे जब अपनी मृत्यु को बुलाकर मृत्यु के हवाले कर सकता है, मृत्यु आकर तेरे पास नहीं आ सकती. तो इसे भीष्म पितामह कैरेक्टर. नाउ व्हाई ही fight against Pandava and why he fight with the Duryodhan, why he was watching when Draupadi's sari is taken away, वह चुप क्यों थे? जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था वह चुप क्यों थे? जब अन्याय हो रहा था, दुर्योधन अन्याय कर रहा था और दुर्योधन पांडवों के बीच में युद्ध हो गया और उसकी तरफ खड़े भी रहे. इसके कारण में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम पूछना चाहेंगे, यहां तक आपको क्लियर हुआ? बस यहां पर 2 सरेंडर्ड हुए. एक तो भीष्म पितामह जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसने संकल्प लिया था अपने पिता के कारण. उसके पिता को कोई कन्या पसंद थी, वो शादी करना चाहता था, वो अकेलेपन थे. उन्होंने अपने पिता के कारण संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और वह साथ ही मैं
शादी भी नहीं करूंगा तो कोई बच्चा ना राज्य स्वीकार करूंगा। यह प्रतिज्ञा से आज की तारीख में विश्व पितामह निर्माण हुआ और विश्व जो सामान्य इंसान देवव्रत था वह विश्व प्रतिज्ञा के रूप से जाने लगा। और अंत समय अपनी इच्छा मृत्यु से मकर संक्रांति के दिन उन्हें अपनी देह त्यागी, क्योंकि सूर्य जब उत्तर नारायण की ओर होता है मकर संक्रांति के दिन, दैट्स व्हाई इट डिसाइडेड टू लूज देयर बॉडी। अब ये सब कहानियों में आज का हमारा युवा, आज का यूथ विश्वास नहीं करेगा। बट व्हाट वी कैन लर्न, आज हमारा यूथ बोलेगा ऐसा कोई होता है, गंगा से शादी कर ली पिताजी ने। आप 2 मिनट के मान के नहीं चले, आपको मालूम है पहले नॉर्मल एज कितनी हुआ करती थी महाभारत के टाइम में? एनीबॉडी नो इट? महाभारत के टाइम में उम्र सामान्य इंसान की 200 साल रहती थी, 200 years. When fight on Arjun was 55-year-old, Lord Krishna was 83-year-old. How many are aware? कितने लोगों को अवेयर है ये चीज? Lord Krishna was 83-year-old, but now you don't compare 83-year-old is an old person. No, no, no. That is total range 200 years and maximum height. So today I discuss about Bhishma Pitamaha past, and now want to discuss about today's Bhishma Pitamaha. You cannot get any Bhishma Pitamaha. Is just a dedication toward the son, is just dedication toward the father. That's why he left the body on Makar Sankranti, which we celebrate as a father-mother day. हम करते हैं ना सेलिब्रेट पिता पुत्र दिवस के रूप में। तो आज हो सकता है लोगों तक नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे पता लगा कि आज मेरे द्वारा ये 5 साल से क्यों मनाया जा रहा है पिता पुत्र दिवस, कि भीष्म पितामह के कारण आज का दिन हुआ कि आज दोनों चीज साझा, एक पिता का त्याग और एक पुत्र का त्याग इस दिन को देखा जा सकता है। आज तो पिता के पीछे क्या त्याग करेंगे, हम भीष्म पितामह के जैसे 0.001% ही हम कर लें बहुत है। मुझे भीष्म पितामह के बारे में आपको वेदों का ज्ञान देके, मंत्रों का ज्ञान बोल के मेरे को नहीं बोलना। गंगा पुत्र बोलते थे क्योंकि गंगा के पुत्र थे। मैं ये चाहता हूं कि आज की तारीख में भीष्म पिता के रोल से हम आने वाले जीवन में क्या ला सकते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप एक पिता हैं, अगर आप एक पुत्र हैं, अगर आप एक पुत्री हैं, today only I discuss about the father element. Now I never differentiate between son and daughter, because आज की तारीख में पुत्रियों ने भी वही स्थान प्राप्त कर लिया जो लड़कों को मिलता है। आज के युग की बात करूं मैं, है ना? Now today's the time the both got it, so it's apply on the daughter also. Up to certain, you talk with yourself as a father, how much you are dedicated toward your son, and as a son or as a daughter, how much you are dedicated toward your father. Especially I request, I salute all the daughters. I never in my healing time, never got any call from anyone, a daughter who is concerned about his father, nature, attitude, पिता के दुख। कभी तक मुझे किसी लड़की का फोन ऐसा नहीं आया कि वो अपने पिता या अपने मां के स्वभाव से दुखी है। लड़कों का आ गया मेरे पास कि मेरा पिता मेरे हिसाब से मकान नहीं कर रहा है मेरे नाम, मेरे पिताजी चिढ़ रहे हैं, मेरे पिता गुस्सा कर रहे हैं, मेरे पिता बहुत दुष्ट है। ये आपको मेरे 10 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं। I never got a call any from a daughter who complained about their parents, but I got more than 100 calls. Those about son, they complained about their father. तो मैं आप लोगों के साथ समाज में संदेश देना चाहता हूं कि अपने पिता के प्रति त्याग की भावना रखें, कुछ पिता को देने की भाव रखें, पिता से लेने की भावना रखें, इन ए शेप ऑफ प्रॉपर्टी, अदर इन ए शेप ऑफ
any emotions. Your father is only need your love and affection. आज के युग में मैं भी एक पिता हूं, मैं केवल ये उम्मीद करता हूं कि मेरा बच्चा भले मेरा सम्मान नहीं करे पर मेरा अपमान नहीं करे। इतनी उम्मीद आज की तो युग में हर व्यक्ति हो गई। इवन मैं as a father I am saying, and as a son I am not able to serve my father because I lost my father at 8-9 year old, but I am serving my elder brother as a father because I complete that vacuum. तो आप सब लोगों के जीवन में पहले अपने आप से बात करें, एक पुत्री के रूप में, एक माँ के रूप में भी, माँ को भी ले लें आप। हाउ मच यू आर रनिंग, बिकॉज मदर डॉटर का, सन का तो रिश्ता है ही, स्पेशली पिता और पुत्र के बीच में। एक पुत्र के रूप में आपने कितना न्याय करा अपने पिता के रूप प्रति, और पिता के रूप में आपने कितना न्याय करा अपने पुत्र के प्रति। मेरे हिसाब से पिता के रूप में तो आपने 1001% न्याय करा होगा अपने पुत्र के प्रति, लेकिन हमको उतना न्याय भी नहीं करना है जो धृतराष्ट्र ने करा कि पुत्र मोह इतना बड़ा हो गया कि वो उसके अस्तित्व से बड़ा हो गया। He is bigger than his existence. तो विश्व पिता मां के जीवन से जो हमने सीखा हल्का सा, जो आज इसको समराइज करूंगा, कि आप लोग अपने पुत्र एलिमेंट को इलाइट करें, आपके पिता तत्व को इलाइट करें, और ऑल रिक्वेस्ट ऑल द रीडर, वॉट एवर यू आर डूइंग टुवर्ड योर एज ए फादर एज ए सन। हम वो विश्व पिता मां के कल्पना भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट ही डिड। वी आर राइट, बिकॉज दैट टाइम इज डिफरेंट। वह समय अलग था, आज का युग हमारा अलग है। तो वह द्वापर के समय का जो ज्ञान है आज के इस कलयुग में हम उसको कैसे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए मुझे बिल्कुल लगा कि अपने रिश्तों को मजबूत करें, और विशेषकर विश्व पितामह से तो यही पिता पुत्र का संदेश आता है कि अपने पिता के प्रति समर्पण रखें और अपने पुत्र के प्रति समर्पण रखें, लेकिन पुत्र के प्रति समर्पण रखते पर इतना ज्यादा भी ना करें कि वो धृतराष्ट्र की लेवल तक चले जाए और पुत्र मोह में आपसे कोई गलती हो जाए। क्लियर? गॉट इट? अच्छा कृष्ण जी, अय्यर जी वांट, अय्यर जी वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, यू आर हियर। You must be, Jai ji, you must be aware, lot of person know aware about, everybody aware about Ayyar ji. Ayyar ji help us in the global disabled healing day. Now Ayyar ji want to say, then Amit will say. Yes Ayyar ji. नहीं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, पिता पुत्र और पुत्र पिता का जो संबंध के ऊपर आपने जो बातें कही हैं, बहुत आज के तारीख में वो भी इतना ही महत्व रखती है जो द्वापर युग में या त्रेता युग में रखी हो, क्योंकि द्वापर युग में भीष्म की बात करते हैं तो त्रेता युग में राम की बात होती है। राम ने भी अपने पिता के प्रति जो उसने बताया है वो सब वो ही उतना ही महत्व रखता है। आज के युग में इस संदर्भ को लेते हुए आज के युग में हमको किस तरह से ये रिश्तों के ऊपर सम्मान करना है, तो बहुत बड़ी बात है सर। गुरुजी आज आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा सा मैं भावुक हो गया। बोले बोले। कि मेरे पिताजी जो है 2006 में हमें छोड़ गए। उसके बाद तो थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मुझे कि मैं 3 महीने तक अपने आप को संभल नहीं पाया, कि मैं किसी के पास जाता तो पूछा था मैं क्यों आया हूँ, पता नहीं। तो इस हद तक मैं पहुंच गया था। उसके बाद धीरे धीरे तो संभलना हुआ। लेकिन अब आज की जो माँ है, तो माँ को मैं हर दिन एक दिन फोन करता हूँ। सुबह मेरे नहाने के बाद एक फोन कर लेता हूँ, मेरे भाई के पास है, बीमार रहती है, लेकिन हर दिन एक फोन तो होता ही, बात करते रहता हूँ। और कुछ भी हो जाए तो मैं सारा काम छोड़ के वहां चली जाऊँ। ये माता पिता के प्रति, क्योंकि वही तो है हमें जो दुनिया दिखाई है, हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो उनके देन है। ये इस बात को किसी भी इंसान ने भूलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अय्यर जी की बात को आगे बढ़ाते बोलता हूँ कि एक मील मजदूर था, एक पिता, उसका बच्चा बाहर की भौतिक दुखी दुनिया देखने के बाद आया, 25 साल की आयु। उसने कहा पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया। ही कंपेयर विद अदर, कुछ लोगों ने प्लाट लेके रखे थे, प्रॉपर्टी लेके रखी थी। तो उस पिता का जवाब आज भी मेरे मुंह पे रहता हो सकता, बोले बेटा
मैंने तेरे को इतना बड़ा कर दिया, इतनी समझ वाला कर दिया कि तू आज मुझसे पलट के पूछ रहा है कि पिताजी तुमने मेरे लिए क्या किया। मैंने तेरे को इतनी समझ लायक कर दिया। बहुत गहरी बात है। आज हम अभी भी इस आयु में भी पिता से उम्मीद रखते हैं। एक आयु के बाद आपका, मैं तो बोलता हूं आपका विवेक जागृत होने के बाद, आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने के बाद, यू आर नॉट सपोज टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर फादर। यू जस्ट डू व्हाट आई कैन डू फॉर माय फादर, besides thinking my father. Still there are a lot of sons who's thinking about the fathers. They are discussing about the father property. It's all are the finger, not any all fingers same. ऐसा नहीं है, सभी लोग हैं। लेकिन हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से एक पिता पुत्र में संबंधों में मधुरता रहे, पिता पुत्र के प्रति, पुत्र पिता के प्रति रहे, यह संदेश हमने भीष्म पितामह के रूप में दिया। और यह भी दिया कि इतना भी ज्यादा पुत्र के प्रति नहीं हो कि आप धृतराष्ट्र बन जाओ। ठीक है, गॉट इट? यस अमित जी, व्हाट यू वांट टू आस्क? Sorry, Guruji, I could not understand the relation between Bhishma Pitama, Shantanu, and Pradeep. Could you just repeat? Pradeep son is Shantanu. Okay. Shantanu son is Bhishma Pitama. Okay. मतलब Pradeep sacrificed for his son. The Ganga is so beautiful. After seeing the Pradeep's beauty, he want to marry with, because his son in the age of marriage age. शादी का दिया तो बोला मेरे बेटे से, तू मेरे सीधी जंगा पर बैठी है तो बेटे का स्थान होता है, तो मेरे बेटे से शादी कर ले। फिर उन्होंने बेटे को देखा, उन्होंने बेटे से शर्त लगाई कि तू अगर मेरे के बीच में कुछ नहीं बोलेगा तो उन्होंने ज्ञान तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट इतने पुत्र नहीं, 8वें पुत्र पर उन्होंने बाढ़ लगा दिया कि मैं अब नहीं होने दूंगा, एक बेटा तो छोड़ दे मेरे पास। उन्होंने कहा कि वो गंगा मैया ने छोड़ दिया। इसीलिए हम गौरव को हम कहते हैं गंगा पुत्र। महाभारत के उल्लेख में आता है गंगा पुत्र, विश्व पिता उसने। और वही गंगा पुत्र ने अपने पिता के प्रति त्याग किया। मतलब एक पिता का त्याग और एक पुत्र का त्याग, ये भीष्म पितामह के जीवन से मिलता है हमें। और उन्होंने 14 जनवरी मकर संक्रांति को प्राण त्यागे, जो कहीं ना कहीं उस दिन सूर्य कितने भी अपने पुत्र के प्रति दुश्मनी हो, वह उसके घर में जरूर आता है। That day, before so long, 5 years, we are celebrating the पिता पुत्र दिवस। मुझे आज समझ में आया कि मुझसे क्यों मनवाया जा रहा है पिता पुत्र दिवस, when I learned about the Bhishma Pitama total. So my dear, whatever is happening, you are using just like a tool. बस आपसे जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको एंजॉय करो। भाई खुश को तो, सुख को तो सब एंजॉय कर लेंगे, दुख को एंजॉय करो ना। If Amit got lottery of 10 crore, he not come to Guruji. Guruji, how I expend the money? If Amit got liability of 10 crore, Guruji, I cannot get rid of from my debt. अमित को 10 करोड़ मिल जाते हैं, वो गुरुजी से बात भी नहीं करे, अपने एंजॉय करने में लग जाएगा। लेकिन वही 10 करोड़ का कर्जा हो जाता है तो वह अलग अलग उपाय ढूंढता, मेरा कर्जा दूर कैसे हो। आप जब सुख में है तो दुख भी आप उसी प्रकार एंजॉय करो। माय डियर, आप जब जब अपने दुख को एंजॉय करोगे, जब जब अपने दुख में से सुख ढूंढोगे, बजाय सुख में से दुख ढूंढने के, आपके चेहरे की मुस्कान कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन से आपने अपने दुखों में से सुख ढूंढना चालू कर दिया, मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति दुखी नहीं है अगर वह सोच ले कि मेरे दुखों में से मैं सुख ढूंढूंगा। कोई व्यक्ति दुखी नहीं, एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो माय डियर, फ्रॉम द भीष्म पितामह के हिसाब से मैंने कहा अपने पिता के प्रति समर्पण, त्याग की भावना। आपका विवेक आने के बाद अपने पिता से कुछ उम्मीद मत रखो, केवल हाउ मच यू कैन सर्व, व्हाट यू कैन डू फॉर हिम, not think what he can do for you. And really I appreciate all the daughters, and I very voluntarily say since last day I never got any call from a ladies this and but
I got a lot of call from the women कि they are getting a pain from their in-laws. They never say they have any problem with the parents. So my dear, you just treat your in-laws as your parents. When you are comparing, is just like your parents. That's why the old पुराने टाइम में प्रथा रहती थी कि माता पिता उस गांव में उसके घर भी नहीं जाते थे उस लड़की के। वो लड़की कहीं ना कहीं उस माहौल में रम जाती थी और माता पिता को भूल जाती थी। आजकल तो माताएं भी फोन लगा के पूछती हैं लंच में क्या बनाया, भिंडी बनाई। Now this is the time because they don't want to become their daughter convert in a groom. मेरी पुत्री बहू बने। मेरा उन माताओं से भी निवेदन है, अपनी बच्ची की शादी करने के बाद उसकी कर्मलीला उस पर छोड़ दो। आपके द्वारा दिया गया सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं उसका गृहस्थ जीवन बर्बाद करने में रोल प्ले करेगा, जो कर रहा है। और मैं तो 100% श्योर बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास कई केसेस ऐसे हैं। तो भीष्म पितामह से हमने जो सीखा, इसके बारे में एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? देन वी क्लोज, देन वी गो फॉर मेडिटेशन। कोई बोलना चाहेगा? एनी क्वेश्चन? यस ये हाँ, ये भीष्म गीता भी कुछ है क्या सर? हाँ? भीष्म गीता करके मैंने सुना है, कहीं है क्या भीष्म गीता, या पता नहीं किसने कहा था। ये तो अलग अलग लोगों की बना दी, जो कैरेक्टर है। उद्धव गीता, भीष्म गीता, उद्धव हाँ, गीता हाँ। हो गई, अर्जुन गीता, तो अलग अलग ये तो उस चीज को लेकर इलोबरेट करके बना दी गई। जी। लेकिन हम तो आज की तारीख में कोई पढ़ भी नहीं रहा, केवल नाम मालूम है। हम नाम, तो जो हाँ। भी ज्ञान मिल रहा है ना, वो ज्ञान को हमारे जीवन में कैसे उपयोग लाए उस जी। पर दिमाग में, है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आई विल लेट यू नो व्हेन इफ आई कम टू नो अबाउट एनी गीता। Yeah. सभी लोगों के बारे में बड़े गीता बनी। एंड उद्धव जो जी। कृष्ण का दोस्त था, उसके बारे में भी हाँ। उद्धव गीता। ओके, सो कल हम एक नया पात्र लेंगे